Hello friends, welcome back to HIM tutorials. Today we are going to study the second part of chemistry in everyday life. First we have is the antacids. What are antacids? The chemical substance which neutralize excess acid in the stomach and give relief from acidity are called antacids. ऐसे chemical substance जो हमारे को acidity से रिलीफ करते हैं उसको हम एंटासिड्स बोलेंगे. उसमें हमारे पास एग्जांपल है बेकिंग सोडा, जिसका केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी होता है. देन वी हैव इज सम सिंथेटिक एंटासिड्स इन विच मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट and omeprazole and lansoprazole are included. Then we have is antihistamines. What are antihistamines? These are the chemical substances which diminish the main action of histamine released in the body and hence prevent the allergic condition. ऐसे chemical substances जो हमारी बॉडी में एलर्जिक कंडीशन को प्रिवेंट करते हैं उसको हम एंटीहिस्टामाइंस बोलेंगे. इसमें हमारे पास एग्जांपल है डाइफिनाइल, हाइड्रामीन एंड एंटाजोलिन एक्सेट्रा. Then next we have is anesthetics. These are the chemical substances which produce general or local invisibility to pain and other sensation. ये एक ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस है जो हमारे को पेन से रिलीफ देते हैं. और इसमें हमारे पास एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म, कोकेन एक्सेट्रा आर जनरल एनेस्थेटिक्स. Then we have is a question, a pain reliever used for relief from severe pain like post-operative pain or pain due to terminal cancer. Then we have is the answer is morphine. The next question is give the name one neurotransmitters. Then we have is answer is acetylcholine. Then the third question is sleeping pills are recommended to patient suffering from sleeping, but it is not advisable to take them without consulting the doctor. Why? The answer is most of the drug taken in doses higher than recommended doses may causes harmful effect and act as poison leading to death. Therefore, doctor must be consulted before taking any medicine who will advise the patient for proper and safe disposal, safe dose of the medicine. इसमें हमारे को बताया गया है कि अगर हम किसी भी मेडिसिन को हायर अमाउंट में ले लेंगे तो हमारे लिए पॉइजन भी साबित हो सकती है. इसलिए कोई भी मेडिसिन लेने से पहले डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है. The next question we have is both anti-acid and anti-allergic drugs are antihistamine, but they can't replace each other. Then we have is the answer is both anti-acid and anti-allergen drugs are antihistamine, but they can't replace each other because they work on different receptors. इसमें हमारे को बताया गया है कि बोथ जो एंटा एसिड हैं और एंटा एलर्जिक ड्रग्स हैं वो एंटी हिस्टामाइन तो हैं पर वो एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकती है बिकॉज क्योंकि वो अलग अलग रिसेप्टर पे वर्क करती हैं. देन नेक्स्ट वी हैव इज अ केमिकल्स इन फूड. देन वी हैव इज फर्स्ट इज अ फूड प्रिजर्वेटिव्स. Food preservatives are the chemical substance which are added to the food material to prevent and retard the spoilage to retain their nutritive value for long period. फूड प्रिजर्वेटिव वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो प्रिवेंट करते हैं फूड की स्पॉइलेज होने से और उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को बनाए रखने के लिए फॉर अ लॉन्ग पीरियड. इसमें हमारे पास एग्जांपल है सोडियम बेंजोएट, सॉल्ट ऑफ प्रोपोनिक एसिड एंड सॉर्बिक एसिड. सॉर्बिक एसिड को हम यूज़ करते हैं प्रिजर्वेशन फॉर चीज़, पिकल्स एंड मीट एक्सेट्रा.
Then we have a third example, the sodium or potassium metasulfide are used as preservative for jams, squashes and pickle, etc. Other examples are BHA and BHT for edible oils. BHA और BHT हम यूज़ करते हैं ऑयल को प्रिजर्व करने में. Then we have is antioxidants. Antioxidants are the substances which prevent or retard the oxidative deterioration of food. और एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस हैं जो प्रिवेंट करते हैं फूड की ऑक्सीडेशन होने से, उसको ख़राब होने से बचाते हैं. जिसमें हमारे पास एग्जांपल है BHA. BHA की फुल फॉर्म हमारे पास ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल है. ये यूज़ किया जाता है प्रिजर्व फैट फ्रॉम बिकमिंग रेंसिड. BHA को यूज़ किया जाता है फैट को प्रिजर्व करने के लिए. और एडिशन ऑफ BHA टू बटर इंक्रीज द स्टोरेज लाइफ फॉर मंथ टू ईयर. BHA जो है बटर की स्टोरेज लाइफ को भी इंक्रीज कर देता है फ्रॉम मंथ से लेके ईयर तक. और BHT फुल फॉर्म इज ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टाउलिन. It is one of the most familiar antioxidant and used to preserve food color and order and flavor. BHT एक बहुत ही फेमिलियर ऑक्सीडेंट है जो यूज़ किया जाता है फूड का कलर प्रिजर्व करने के लिए, उसका फ्लेवर और ऑर्डर को प्रिजर्व करने के लिए. एंड some other example we have is ascorbic acid which are used to preserve vitamin C and tocopherol acid are also used to preserve vitamin E. ये एंटीऑक्सीडेंट के एग्जाम्पल ही है. Then next we have is artificial sweetening agent. These are the chemical compounds which give sweetening effect to the food and hence its odor and flavor. ये ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो स्वीटनिंग इफेक्ट करते हैं प्रोवाइड फूड को. इसमें हमारे पास एग्जांपल है शेसरीन का. इट इज़ मोस्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट. ये जो है बहुत ही पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है. इट इज़ यूज्ड फॉर ग्रेट वैल्यू फॉर डायबिटिक पर्सन एंड पीपल हु नीड टू कंट्रोल इनटेक ऑफ कैलोरीज. ये जो है डायबिटिक पर्सन के लिए बहुत ही यूज़फुल है टू कंट्रोल द कैलोरीज. Next we have is second is aspartame. Aspartame is aspartame is one of the most widely used artificial sweetener. It is used as sugar substitute to cold food and soft drinks. एस्पर्टेम जो है एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो शुगर सब्सटीट्यूट यूज़ किया जाता है फॉर सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड कोल्ड फूड्स के लिए. हमारे पास इसमें एग्जांपल है एरिटेम और sucralose. These artificial sweeteners are low calorie sweeteners. ये जो artificial sweetener है ये low calorie sweeteners होते हैं. What problem arises in using erythema as artificial sweeteners? क्या प्रॉब्लम अराइज होती हैं जब हम एरिटेम को आर्टिफिशियल शुगर के तौर पे यूज़ करते हैं. इट हैज़ अ हाई पोटेंशियल आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, देयरफॉर इट पोजेस प्रॉब्लम टू कंट्रोल द स्वीटनिंग इफेक्ट ऑफ द फूड. मतलब एरिटेम जो है इसमें हाई शुगर होती है जिसकी वजह से ये शुगर को कंट्रोल नहीं उसमें शुगर कंट्रोल नहीं हो पाती है. ये डायबिटिक पर्सन के लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकती है. Next we have is the cleaning agents. In cleaning agent first we have is a soap. Soap are sodium and potassium salt of higher fatty acid containing long chain of 16 to 17 carbon atoms. सोप जो है सोडियम और पोटासियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड का चेन कंटेन करता है जिसमें 16 टू 17 कार्बन एटम कनेक्टेड होते हैं. इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं पैल्मिटिक एसिड का, स्टीरिक एसिड का, ओलिक एसिड का. हमने जो इसमें एग्जांपल लिया है सोडियम स्टीरेट का, जिसका हमारे पास केमिकल फार्मूला है C17H35COONA. हमने इसको वाटर के साथ
रिएक्ट किया है, जिसके बाद हमारे पास एक रिएक्शन प्रोड्यूस हुई है, C17H35COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। C17H35O सी नेगेटिव स्टीरेट आयन है, जिसमें एक COO एक पोलर हेड है और एक टेल, इसमें एक Na की टेल बनी हुई है। नाउ वी हैव इज स्पॉनिफिकेशन। व्हाट इज स्पॉनिफिकेशन? व्हेन ये एक प्रोसेस है जिसमें एक प्रोसेस है मेकिंग ऑफ सोप की। उसमें हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं सोप की, उसमें फैट और ऑयल विद अल्काइल इज कॉल्ड। This process of making soap by the hydrolysis of fat and oil which with alkyl is called sponification. ये प्रोसेस है मेकिंग ऑफ सोप की बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट एंड ऑयल, जो इसमें कंटेन किया जाता है विद अल्काइल इज कॉल्ड स्पॉनिफिकेशन। इसमें हम ब्रेक डाउन किया जाता है इसमें फैट और ऑयल को, टू उसकी हाइड्रोलिसिस हो सके। नेक्स्ट वी हैव इज अ रिमेंबर पॉइंट, shaving soap. These are the uh, sodium, potassium sodium stearate and produce lasting leather. These contain glycerol to prevent rapid dry. जो शेविंग सोप होता है उसमें पोटाशियम स्टीरेट की लॉन्ग चेन प्रेजेंट होती है और उसमें प्रोड्यूस होता है लास्टिंग लेदर। इसमें जो है ग्लिसरॉल डाला जाता है ताकि वो जल्दी से ड्राई ना हो सके। नेक्स्ट वी हैव इज सोप एज क्लीनिंग एजेंट। soap as cleaning soap as cleaning agent. It is a good cleaning agent and is biodegradable, therefore soap do not cause any pollution problem. Then we have is some limitation, इसमें it can't be used in hard water because the ion C, calcium 2 positive and magnesium 2 positive react with soap to form a white PBT of calcium and magnesium salt. ये बहुत ही सोप की एक लिमिटेशन है, ये जो मतलब हम इसको हार्ड वाटर में यूज़ करेंगे तो ये रिएक्ट कर जाएगा कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के आयन से और एक वाइट पीवीटी सब्सटेंस बनाएगा जो बहुत ही स्टिकी होता है, वो आपके क्लोथ्स को भी ख़राब कर सकता है। इट कांट बी यूज़ इन एसिडिक मीडियम। सोप को हम जो है एसिडिक मीडियम में भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। द नेक्स्ट वी हैव इज डिटर्जेंट्स। Detergents are the sodium salt of long chain alkyl sulfate or long chain alkyl benzene sulfonate. These are also called soapless soap because they behave like soap in having cleaning properties. डिटर्जेंट जो है सोडियम सॉल्ट की लॉन्ग चेन होती है अल्काइल सल्फेट और उसमें लॉन्ग चेन होती है अल्काइल बेंजोन सल्फोनेट की, और उसको जो है हम सोपलेस सोप भी बोलते हैं बिकॉज वो बिहेव करता है एज अ सोप इन हैविंग क्लीनिंग प्रॉपर्टीज में। नेक्स्ट वी हैव इज द क्लासिफिकेशन ऑफ डिटर्जेंट्स। फर्स्ट वन वी हैव इज cationic detergent in classification of detergent. Those detergent which have cationic hydrophilic group, जिन डिटर्जेंट के पास cationic hydrophilic group होता है उनको cationic detergent बोलेंगे हम। These are mostly acetates, chloride or bromide of quaternary ammonium salt, जिसमें हमारे पास एग्जांपल है सिटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम क्लोराइड, जिसका केमिकल फार्मूला CH3CH215 एंड CH33 positive Cl negative. Next we have is a anionic detergent. Those detergent which have anionic hydrophilic group. These are manufactured from long chain alcohols. ऐसे डिटर्जेंट जिनके पास अनाइनिक हाइड्रोफिलिक ग्रुप होते हैं उनको हम अनाइनिक डिटर्जेंट बोलेंगे। वो जो है मैन्युफैक्चर्ड होते हैं लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल से, जिसमें हमारे पास एग्जांपल है सोडियम लोरेन सल्फेट, जिसका हमारे पास केमिकल फार्मूला C11H23 CH2OSO3Na है। Anionic detergent are also used in
टूथपेस्ट। एनाइनिक डिटर्जेंट जो है यू ऑल्सो यूज़ किए जाते हैं टूथपेस्ट में। देन वी हैव इज अ न्यूट्रल डिटर्जेंट्स। न्यूट्रल डिटर्जेंट नॉन आयनिक डिटर्जेंट भी हम इनको बोलेंगे। These are the detergents ester of higher molecular masses with fatty acid. These contain polar group with which can form hydrogen bond with water. ये क्या ऐसे डिटर्जेंट हैं जिनमें एस्टर होता है हाई मॉलिक्यूलर मास में विद फैटी एसिड के साथ। ये जो दे कंटेन वो कंटेन करते हैं पोलर ग्रुप्स, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं विद वाटर के साथ। इसमें हमारे पास एग्जांपल है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल स्टीरेट, जिसमें हमारा हम इसको लिक्विड डिश वॉशिंग डिटर्जेंट को हम नॉन आयनिक डिटर्जेंट बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज अ डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट्स। द फर्स्ट वी टेक इज सोप। सोप आर सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। सोप जो है सोडियम सॉल्ट की लॉन्ग चेन फैटी एसिड होती हैं, और डिटर्जेंट है सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन अल्काइल सल्फेट और लॉन्ग चेन अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट। डिटर्जेंट में जो है लॉन्ग चेन होती है अल्काइल सल्फेट की, सोडियम सॉल्ट और लॉन्ग चेन ऑफ अल्काइल सल्फेट और लॉन्ग चेन अल्काइल बेंजीन सल्फेट। सोप में जो है दे कैन नॉट बी यूज इन एसिडिक मीडियम। सोप जो है एसिडिक मीडियम में यूज़ नहीं किए जा सकते हैं, और डिटर्जेंट जो है एसिडिक मीडियम में यूज़ किए जा सकते हैं। सोप हार्ड वाटर में पीपीटी फॉर्म कर देता है विद कैल्शियम 2 पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव आयन के साथ। उसके ऑपोजिट डिटर्जेंट जो है हार्ड वाटर में detergent can even be used in hard water as they do not form any ppt with calcium 2 positive and Mg2 positive. Soap are biodegradable and do not form any pollution. uh, Detergents are non-biodegradable and uh, produce pollution into river and lakes. Next we have is the advantage of synthetic detergent over soap. The first one we have is a detergent can be used for washing even in hard water. On the other hand, soap cannot be used in hard water. डिटर्जेंट पहले वाले पॉइंट में हमारे को बताया ये है कि हम डिटर्जेंट को जो है हार्ड वाटर में भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके अपोजिटली हम जो है सोप को जो है हार्ड वाटर में यूज़ नहीं कर सकते हैं। डिटर्जेंट को हम एसिडिक मीडियम में भी यूज़ कर सकते हैं, वहीं इसके अपोजिटली हम सोप को एसिडिक मीडियम में यूज़ नहीं कर सकते हैं, है ना। तो सोप जो है स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट जो है स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग एजेंट माना गया है एज अ सोप। सोप से ज़्यादा वो बेटर है क्लीनिंग एजेंट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।